باپار منڈل بارہمولہ کس پریزیڈنٹ سند طرف پنس پریزیڈنٹ بھائیس مبارک کیا اللہ تعالیٰ دیت أمس عزت یہ بنیا چیئرمین آل ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی باپار منڈل بارہمولہ کی ایک بڑی اکائی بزنس کمیونٹی کے لحاظ سے ہے اور ہم آج ارشاد احمد اہنگر صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے باپار منڈل بارہمولہ کی وسادت سے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ایک بہت نہایت اچھا اقدام اٹھایا کہ انہوں نے ایک کوآرڈینیشن کمیٹی جو پہلے سے ہی تھی لیکن اس کے چیئرمین وہ ہمارے مشتاق احمد نوشہری صاحب تھے یا دوسرے عہدیدار تھے، آج انہوں نے ارشاد احمد اہنگر صاحب کو بنا. یہ بارہمولہ کے لیے فخر کی بات ہے کیونکہ یہ ینگ ہے، ہونہار ہے اور کام کرنے والے. کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم باپار منڈل بارہمولہ کی قیادت جموں میں تھی اپنے کچھ ٹاؤن کے اور ڈسٹرکٹ کے مسائل کے لحاظ سے، اس لیے آج ہم پوری ٹیم لے کر جس میں ہمارے سابقہ پریزیڈنٹ اشفاق احمد قاضی صاحب، وائس پریزیڈنٹ جاوید احمد صالح صاحب، ٹریزرر ہمارے ارشاد رسول صاحب اور ہمارے پولٹری ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ نصیر احمد بٹ صاحب اس ٹیم میں شامل ہیں. ہم آج مبارکباد دینے کے لیے ارشاد احمد اہنگر صاحب کو آئے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا طارق صاحب. دیکھیے جو طارق احمد باپار منڈل کے پریزیڈنٹ صاحبان ہیں، اشفاق احمد صادقہ پریزیڈنٹ صاحب تھے اور جو باقی بھی اس کے ممبران صاحبان ہیں، ہم ان کو بیسک بارہمولہ ٹیکسی آنرز یونین پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے اور بیسک بارہمولہ ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین جو میں حال ہی بنا، مطلب دل کی امید گہروں سے ادھر سے بھی مبارکباد پیش کی اور انہوں نے اپنا ایک دل کا ایک بات بتائی، یہ ادھر مبارکباد دینے آیا، ہم اس کے لیے بڑے خوش ہیں. بہت بہت شکریہ. باقی اس سے پہلے بھی طارق صاحب صدر جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے باپار منڈل کا، یا آج ویسے پریزیڈنٹ باپار منڈل کا بنے. ہم صرف اسی غرض سے آئے، یہ ہمارے چھوٹے بھائی بڑے بھائی ہیں، میں بھی اس کا چھوٹا بھائی، ہمیں صرف اس غرض سے ہم بنے کہ ہمیں مل جل کر بارہمولہ کو بچانا. جو بھی کوئی یہاں کی یونینز ہے سبوں کو ایک ہی جھنڈے کے نیچے تلے کام کرنا ہے تاکہ بارہمولہ سے جو ٹریفک جامنگ، جو یہاں کے اسٹریٹ وینڈرز کی پریشانیاں، جو لوگوں کی پریشانی، جو یہاں کے دکانداروں کی بے روزگاری، جو یہاں کی ٹرانسپورٹ والوں کی بے روزگاری، ہمیں سب کو اس کو مل جل کر کرا. اور جو بھائی ہم سے کسی ایسوسیشن سے روٹے ہوئے، ہمارے دروازے ہر وقت کھلے، چاہے باپار منڈل کے ہو یا ٹرانسپورٹ، ہر وقت دروازے ان کے لیے کھلے، وہ بھی ہمارے ساتھ جو آئے تاکہ اس بارہمولہ کو ان مصیبتوں کی جڑوں سے ہم نکالیں، تاکہ جو بارہمولہ کے عام لوگ سانس لے کہ ہماری جو یہ یونین یہاں بڑی کوئی فائدہ آ گیا. حال ہی تو جیسے کہ طارق احمد مغوی یا اشفاق احمد قاضی صاحب نے یہاں پر ایک وہ باپار منڈل کا وہ دفتر بنایا، یا جیسے کہ یہ سومو اسٹینڈ کا دفتر ہے اس وقت، مگر یہ سومو اسٹینڈ والوں کا یہ دفتر نہیں ہے، یہ ہے بارہمولہ کا عوام کا دفتر. جو باپار منڈل ہے وہ بھی ہے بارہمولہ کا عوام کا دفتر. ایسی پروسیس آئندہ بھی ملنا کے چاہیے، چاہے طارق صاحب ہو، اشفاق یا اور بھی کوئی پردھان ہمارا ہو. صرف ہماری یہی کوشش رہنی چاہیے، اس سے آگے ہم جانا چاہیے. بارہمولہ میں حد سے جامیں گے، خاص کر ٹریفک جام سے ہمیں نجات دلانی ہے. ٹریفک جام جو یہاں کے لوگوں کے لیے وہ بڑی پریشانی ہے. یہاں کے سکول بچے جب سکول جاتے ہیں اس وقت دیکھیں کتنا جام لگ رہا ہے. جیسے کہ مطلب یہ سکول جو یہاں کے اس وقت دیکھیے ادھر، ہاں ہم بھی کہیں کسی جگہ پر غلط ہے، یا طارق صاحب کے دکاندار بھی کسی جگہ پر غلط ہے. ہمیں مل جل کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں طارق صاحب کا شکر گزار ہوں اور جو اس پر چیئرمین کوآرڈینیشن کمیٹی طرف
आप पिछले दिनों से कहीं जम्मू में थे, आप बहुत सारे वहाँ सेक्रेटरी साहिबान से भी आपने चीफ सेक्रेटरी से भी की, और अब जबकि आपने कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से भी मुलाकात हुए, इस दौरान उनका क्या कहना रहा पार्किंग के हवाले से? देखिए, हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो एक IAS यंग ऑफिसर है, उनसे हमने बाज़ाब्ता बात की और एक हमने उन्हें मेमोरेंडम पेश किया, जिस मेमोरेंडम में हमारे कुछ मुतालबात दर्ज थे, जिसमें हमारा सबसे बड़ा मुतालबा था ट्रांसपोर्ट ARTO ऑफिस का, क्योंकि बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर तो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो है वो जैसदा भी है टाउन हेड क्वार्टर में ही, तो वो हमारी सबसे बड़ी डिमांड थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसमें हमें भरपूर एश्योर किया कि यहाँ पे RTO ऑफिस रीजन का अब कायम होने जा रहा है, जिसके लिए हमने स्पेस भी अवेलेबल रखी है। तो एक वो मुबारकबाद में इन ट्रांसपोर्ट साहिबान को आज इस मुकद्दस मौके पर, जिस मुकद्दस मौके पर हमारे इरशाद साहब पूरे कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी मुंतखब हुए हैं, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि अब RTO ऑफिस बारामूला में इंशाल्लाह रहमान राइज होगा। और दूसरा मुतालबा जो हमारा था वो था हमारा कार पार्किंग का मसला। आप देखते हैं कि जैसे अभी इरशाद साहब ने कहा कि कितने मुश्किलात हमें दरपेश होती, क्योंकि सारी गाड़ियां जो है वो रोडों पर खड़ी होती, चाहे वो दुकानदार की है, चाहे वो ऑफिसर की है, चाहे वो मुलाजिम की है, चाहे वो कस्टमर की है, या जो भी दूर दराज इलाकों से यहाँ चाहे डॉक्टर के पास कोई आता है, हॉस्पिटल आता है, SSP ऑफिस आता है, DC ऑफिस आता है, तो उसकी गाड़ी जो है रोड पे खड़ी रहती है। तो उसमें भी हमें एश्योर किया गया, और R&B के जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उसने भी एश्योर किया कि उसकी टेंडर अपलोड हुई है। इंशाल्लाह रहमान कुछ आने वाले दिनों में आप यहाँ देखेंगे कार पार्किंग का एक स्लॉट कायम होगा और ये मुश्किलात भी हमें दूर होगा। और इसके साथ साथ हमने कुछ रोड कनेक्टिविटी के बारे में उनसे बात की, जो हमारे कुछ रूट्स कट गए हैं जहाँ हमारे गाड़ियाँ नहीं जाती है आजकल, तो उन्होंने वो भी एश्योर किया उन रूटों पर भी इंशाल्लाह रहमान गाड़ियाँ चलेंगे, जैसे हमारा कंडी है, ऊडी है, रफियाबाद है, रहमा है, या जितने भी पेरीफेरीज इलाके हैं, क्योंकि यहाँ इनको एक ट्रांसपोर्ट वालों को एक अपनी एक कोऑर्डिनेशन है। जैसे यहाँ से डायरेक्ट बांडीपोरा गाड़ी नहीं जाती है, यहाँ से सोपोर जाती है, फिर सोपोर से बांडीपोरा जाती है। तो इंशाल्लाह रहमान मैं इरशाद साहब से भी अब रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट गाड़ियाँ यहाँ से चलनी चाहिए। जैसे यहाँ से मागम डायरेक्ट गाड़ी नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ से पटन जाती है, फिर पटन से गाड़ी मागम जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ गाड़ियाँ डायरेक्ट रूटों पे भी चलनी चाहिए, वो भी हमने उनसे मुतालबा उनको दोहराया है। इंशाल्लाह रहमान उस पर भी काम होगा। और यहाँ जो स्मार्ट सिटी का जो एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी श्रीनगर और जम्मू, उसमें भी हमने एक दरपेश एक अपना देराना मसला जो था वो हमने पेश किया है। उस मेमोरेंडम में हमें यहाँ बसेस जो फिर उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ जो स्मार्ट सिटी के अंदरूनी शहर में जो चलेंगी, जैसे सोरा इंस्टीट्यूट के लिए, बरजला इंस्टीट्यूट के लिए, ललदत हॉस्पिटल के लिए, या SMHS हॉस्पिटल के लिए, तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक बस जो बारामूला आएगी, ये उन इंटरनल जो बसेस है स्मार्ट सिटी उनके साथ कनेक्ट, उससे हमारे जितने भी दूर दराज इलाकों के बीमार है, पेशेंट है, उनको राहत मिलेगी। वो डायरेक्ट उनके साथ कनेक्टिविटी उनको रहेगी, वो उन पे यहाँ से ड्रॉप होकर उन गाड़ियों में चढ़ के अपनी मंजिल मकसूद तक, या हमारे स्टूडेंट्स हैं जो REC में पढ़ते हैं, या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, या बाकी कोचिंग सेंटरों में पढ़ते हैं, उनको भी राहत उससे मिलेगी इंशाल्लाह रहमान। उसके लिए एक चार्जिंग पॉइंट भी बारामूला में कायम होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर वाले यहाँ इंस्टॉल, उसके लिए लैंड भी हमने मांगी है। तो इंशाल्लाह रहमान उन्होंने उसके लिए भी हमें एश्योर किया कि बस स्टैंड जनरल बस स्टैंड जो हमारा है वहाँ पर एक चार्जिंग बस स्टैंड का जो चार्जर रहेगा वो वहाँ पर रहेगा। जो श्रीनगर से बस आएगी वो वहाँ चार्ज होगी, उसके बाद यहाँ से जाएगी। ये भी इनको मैं आज मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाल्लाह रहमान हम जुड़े ही हैं इरशाद साहब, और हम अलग अलग नहीं है, क्योंकि हम दोनों बिजनेस ही करते हैं। ये अपने लिहाज से बिजनेस करते हैं, हम अपने लिहाज से हम रोज़गार ही कमाते हैं और रोज़गार ही लोगों को देते हैं। ये भी टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देने वाले। तो इंशाल्लाह रहमान हम मिलजुल कर बारामूला की जो शान रफ्तार है, जो खस्ता हुई है पिछले 30 सालों में, तो इंशाल्लाह उसको बहाल करने के लिए हम दोनों मिलजुल कर वो काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, और बारामूला के लोगों को इंशाल्लाह हर राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जितनी भी हमारी सलाहियतें हैं हम इंशाल्लाह बरोकार लाएंगे, और बारामूला को आप देखेंगे कुछ दिनों में ही इंशाल्लाह रहमान बारामूला का पलड़ा
चेंज हो जाएगा। शुक्रिया। तो ये मुबारकबाद है, और यहाँ के भी आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप अपने काम को बरोए कार लाकर किस तरीके से आप आगे जाने की कोशिश करेंगे अब, क्योंकि आप पे आप बहुत ज़्यादा दबाव है। देखिए, हमने हाल ही में कहा जो यहाँ स्टैंडों की प्रॉब्लम है वो हद से ज़्यादा है। तारिक साहब मेरे बड़े भाई ने ये भी कहा कि ट्रैफिक जाम या पार्किंग, ये हद से ज़्यादा प्रॉब्लम बारामूला को नज़र में आ रही है। जैसे कि उड़ी भी अगर हम जाएंगे उधर भी जाम है। खासकर अब हम बारामूला की बात करें, बारामूला में हर जगह पर हद से जाम है। सिटी वेंडरों की, हम सोमो स्टैंड वालों की, ट्रांसपोर्ट जो भी है उनसे, रास्ते तो वही है जो पुराने थे, वही रास्ते हैं, इन्होंने तो बढ़ाया नहीं। हालात भी आप कश्मीर के बखूबी वाक़े में क्या हालात भी क्या थे। अब तारिक साहब ने जो बोला कि हम आला कामों तक गए कि यहाँ पर एक आरटीओ कश्मीर का, एक नॉर्थ कश्मीर को एक दफ्तर मिलेगा, उसमें भी तारिक साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसमें इन्होंने एक पहल कदमी की। खासकर वो सिर्फ एज बारामूला के लिए एवाज़ नहीं है, वो एज नॉर्थ कश्मीर के लिए एजाज़ है। हम बेसिक ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन होने के नाते तारिक साहब को इसका मुबारकबाद पेश करें कि उन्होंने एक बड़ा कदम एक उठाया, खासकर हम ट्रांसपोर्ट वालों हजरात के लिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मतलब कि आइंदा आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। गवर्नमेंट अगर हमें अकामडेशन दे सकते हैं कि जैसे कि हमने ये कहा कि बसों की, अगर हमें उसमें सब्सिडी हमें मिलती थी हम भी बसें उठाते थे, नहीं गाड़ियों में अगर सब्सिडी अगर मिलती थी हम भी उठाते थे उन्हें। मगर गवर्नमेंट हमें कोई पॉलिसी ऐसी नहीं दे सकती कि जिससे हम अपना रोज़गार आगे बढ़ा सकते। जो हमारा एक नज़रिया था वो एक ही दम पर है कि बस अगर कोई उठाएगा वो 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख। हमने इससे पहले भी एक अपना मेमोरेंडम वज़ीर मोहम्मद शफी मीर जो हमारे चेयरमैन है ऑल ट्रांसपोर्ट कमीशन के, उन्होंने भी एक मेमोरेंडम पेश किया था ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ड्यूकाम साहब के पास, मगर अभी तक उस पर कोई रद्द अमल नज़र में नहीं आया। जो ही वो अगर वो रद्द अमल नज़र आएगा कि वो कोई सब्सिडी देना चाहते तो हम भी बिग बस लाएंगे। जो यहाँ पर सपोज तारिक साहब को नज़र में या लोगों में कि बस स्टैंड की हालत हम उसको खुद बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि इश्ताक साहब हमारे, वो भी हमारे इसमें एक जनरल सेक्रेटरी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, मोहम्मद बुलवानी साहब, वो भी एज कैशर है, और बाकी जो ट्रांसपोर्ट हब के हजरात हैं हमें जो बाकी बिंगू से, वो भी उसके मेंबर, सब हम चाहते हैं तारिक साहब से मिलजुल कर इस रवा दवा कदम को हम आगे बढ़ाएं ताकि बारामूला की शान शौकत आगे बढ़ जाए और बारामूला एक मिसाल बन कर खड़ी रह जाए बाकी डिस्ट्रिक्ट। बारामूला सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, मगर बारामूला में पता नहीं किन सियासतदानों की नज़र लगी, ये बद से बदतर होता जा रहा है। हम वैसे तो आपके माध्यम से आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं जो तारिक साहब ने ये हमें एक आश्वासन दिलाया, इसको फिलफूर कायम किया जाए इधर। बाकी वसल्लम। तारिक साहब, यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूँगा, आपके बाबर मंडल के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे और आप भी प्रेसिडेंट हैं, तो आवारा गाड़ियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम आमतौर पे देखेंगे सड़कों पे ज़्यादातर गाली गलौज होती है जिसका सरा आप ही के सर पे जाता है जी, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, तो आवारा गाड़ियों पे आप क्यों नहीं कदम लगा सकते हैं, क्या वजह है? देखिए जनाब, जैसे कि आपने कहा कि आवारा गाड़ी, वो भी हमारे भाई यहाँ टंडल से इस पार एक निज़ाम यहाँ की जो इससे पहले हुकूमत हुआ करती थी, टंडल से पीछे दूसरा निज़ाम। यहाँ पर अगर जम्मू में गाड़ी किसी को देना था उधर लेटर हेड होना चाहिए यूनियनों का। यहाँ पर जो ब्रोकर्स है, जो माफिया लोग हैं, वो अफसरों से मिलजुल कर इसका नाजायज़ पौधा उठाते। वो कहते हैं कि ये बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है, इसकी सर्टिफिकेट हम इसी को देते हैं सब्सिडी में। वो गाड़ी वो नहीं है। ये मैं आपको बता, आप इस चीज़ से बखूबी कोई किसी को ये नहीं चाहता कि मेरे साथ इज्जत रेजी होनी चाहिए या गाली गलौज, मगर जो सब्सिडी गाड़ियाँ कोई उठा रहा है वो ब्रोकर एक उठा रहा है, एक दलाल उठा रहा है, वो उठा रहा है गाड़ियाँ 10, 20, 30, 40, वही गाड़ियाँ वो रोड पर रहा है, उसकी सर्टिफिकेट बंद होती है, उसने 20,000 लिया होता है, 10,000 होता है, 30,000। हम नितिन गडकरी साहब को ये मोदबाना अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं हम कि अगर आप यहाँ सिस्टम ठीक करना चाहते हो, हम नहीं कहते कि हमारा लेटर पैड चलना चाहिए, चाहे व्यापार मंडल भी होगा उसमें सबों को मिलजुल कर कि यहाँ पर वैकेंसी है कि हम गाड़ी ला सकते हैं। अगर यहाँ गाड़ियाँ 100 है, हम उस जगह पर 500 घुसाएंगे, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? जैसे कि दुकानदारों का एक निज़ाम है, अगर दुकानों की जगह एक जगह पर 100 है, उधर हम 400 दुकानें, हो जाएगा पीसफुल। ये तो गवर्नमेंट की उधर से नाहली, जो इससे पहले गवर्नमेंट उन्होंने बेतहाशा रूट परमिट दिए, बेतहाशा रूट परमिट इजरा किए, मतलब सियासतदानों के नाम पर। हम अब उनका नाम नहीं लेने चाहते
क्योंकि उन्होंने ही किया। ये जो ये बेड़ा गर्क है ट्रांसपोर्ट का, आप देखो कि टंडल से इस पार होगा इतनी ट्रैफिक जाम है, आप टंडल उस पार देखे उधर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ही दूसरा है। चलिए मानते हैं कि इनका रोज़गार इसी पे है, क्या आप इनको अपने स्टैंड में आप मेंबरशिप नहीं दे सकते हैं? देखिए मेंबरशिप जो स्टैंड की होती है वो पर्सनल मैं नहीं दे सकता हूँ। मेंबरशिप हमारे मेंबर हजरात यहाँ हर एक यूनियन में, जैसे कि बापर मंडल में जब कोई दुकान बनाएगा तभी उसको मेंबरशिप मिलती है। जब तक ना उसको पहले देखनी है मेरी ज़मीन कहाँ, अगर मैं किसी जगह दुकान बनाना चाहता हूँ तब उसकी मेंबरशिप मिलेगी। अब वो अननेसेसरी आएगा कि भाई मुझे मेंबरशिप दो। मेंबरशिप ना हम देते हैं ना कोई हमारा देखिए हमारा बोर्ड लगा हुआ है। आज से 20 साल पहले मुझे 101 दिया गया, वही 101 है। हाँ, जो बाकी गाड़ियाँ जिस वक्त तारिक साहब आए कुछ गाड़ियाँ थी इधर, इन्होंने बोला इनको चला, वो हमारे साथ चलते हैं। पार्क से पहले वो गाड़ियाँ थी उनको हमने चलाया। अब हर दिन ब दिन हमें लोड बढ़ता जाएगा तो जो हमारी ऑलरेडी गाड़ियाँ वो कहाँ जाएगी। तो आखिरी सवाल आपसे इरशाद साहब, ये आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आप ये बताइए कि अब आप इसके वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन भी बन गए हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट भी, तो ये बताइए कि आवाम को आप ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है सुबह से कब तक आप इसमें आपने कुछ एक्सटेंड किया है टाइमिंग के हवाले से? देखिए अगर इधर हालात साजगार रहे, तारिक अहमद महमूद साहब ने या इशफाक अहमद काजी साहब जो साहब या जावेद अहमद साले साहब से वाइस प्रेसिडेंट, हमने इससे पहले भी मीटिंग की कि हमारी गाड़ियाँ रात को, हम चाहते हैं कि यहाँ का निज़ाम ठीक हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारा रोज़गार बढ़ना, हमें रात को भी चलना चाहिए तो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटियाँ होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी देगी रात को कुपाड़ा टंगड़ा जहाँ भी, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई इधर प्रोग्राम बना के गाड़ियाँ रात को, जिस तरह दिल्ली यहाँ 4 बजते लोग जाते हैं घरों में, हमें शौक तो 4 बजे घर में बैठने का नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा रोज़गार बढ़े। उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को अवेयरनेस करनी है कि ताकि अगर वो लोगों को मतलब कुछ आश्वासन दे कि हाँ गाड़ियाँ रात तक चलेगी, कोई मतलब नाखुशगवार वाक़ात ना होता है, कुछ नहीं होता गाड़ियाँ। इससे आज तो हालात तो ठीक है, हम चाहते हैं कि रात को हमारा ये चले, रात का ट्रांसपोर्ट। इसमें तारिक अहमद मगलू साहब ने, जायद साहब ने या बाकी ये बापर मंडल के जिम्मे और जो भी कहाँ यहाँ के जो में बारामूला ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी सब मिलजुल कर भी इससे पहले हमने तारिक साहब से मिलजुल कर कि रात का ट्रांसपोर्ट चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया।